Hello everyone, once again you all are welcome back to our YouTube channel, and in today's video I am going to tell you about a new job vacancy in the USA Embassy. So I would request you to watch this video completely so that you can understand each and everything about this job profile. So let's begin it. So the name of the position is the visa assistant officer. Okay, so this is the name of the post title is visa assistant officer, and the job vacancy was released for the Mumbai consulate of the USA embassy. So in the Mumbai there is a branch of the USA embassy, so there this vacancy has been released. So I will tell you about the education qualification and eligibility criteria in terms of the experience and the language expertise, and I will also share you what salary package they are offering to you and when you can join the main embassy. So the first thing about the we will begin from the education qualification. So एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है. सो यू मस्ट हैव completed योर ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी ऑफ द स्ट्रीम, मीन वेदर यू आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटी और कॉमर्स और द साइंस बैकग्राउंड. तो आप किसी भी तीनों चीज़ में, अगर आपकी बीए भी है, बीकॉम है या बीएससी है, तो आप इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के टर्म्स में एलिजिबल हो जाएंगे. सेकंड थिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस पार्ट. So they have clearly mentioned in their notification that you must have 2 years of experience in the consulate line. ठीक है, या तो consulate line में हो और in the customer executive line या फिर ऑफिस क्लैरिकल लाइन. तो ये तीनों लाइन में, तीनों फील्ड में आपका एक्सपीरियंस हो सकता है. द मेन पर्पस ऑफ डिफाइनिंग दिस फील्ड आर दैट यू मस्ट बी कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट्स. ये स्किल कि कम्युनिकेट कैसे करना है क्लाइंट से, ये चीज़ आप में स्किल होनी चाहिए. सो दे जस्ट वांट टू चेक इट वेदर यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द फील्ड. ठीक है, किसी भी फील्ड से आप हो सकते हैं. अगर आप में ये कम्युनिकेशन स्किल है दैट हाउ टू डील विद द कस्टमर्स, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. लेकिन आपका 2 years का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में. अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं. और एक चीज़ और, जैसे कि आप ऐसा भी हो सकता है कि 1 year का एक्सपीरियंस आपका वीज़ा में है और 1 year का एक्सपीरियंस आपका कस्टमर सर्विसेज में, तो भी वर्क करेगा. इन टोटल आपका 2 year होना चाहिए. नाउ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज एक्सपर्टीज़. तो यहाँ पर जो लैंग्वेज की प्रेफरेंस रखी गई है, तो वो गुजराती की लैंग्वेज रखी गई है. ठीक है, अगर आपको गुजराती बोलना आता है देन यू विल बी प्रोवाइडेड द मोर प्रेफरेंस. ठीक है, यू विल बी प्रेफर्ड बिकॉज दे हैव मैंशनड specifically in their notification that the candidate must have the knowledge about the Gujarati language, because in the Mumbai consulate there will be many of the clients who were applying from the Gujarat region. So if they are speaking in their regional language, then you must be capable of replying them and communicating or interacting with them in their regional languages. Now we talk about the salary part. So the salary they have defined is annually 7,35,000. So this is the annual package. Okay, and you can know the breakdown of these annual package through Google or by some of your friends. So this is the annual package 7,35,000. And what is the time of the notice period, or when you can start? So that will take the time approximately 5 to 7 weeks. So they have mentioned in their notification that the candidate must begin the work after 4 to 7 weeks. So if you want to apply, you can, and after that you must be able to join in the Mumbai consulate within the 4 to 7 weeks or 5 to 7 weeks. Maximum is 7 weeks. So these all are the information that were provided in the notification. If I briefly tell you what is the role and responsibilities of the visa assistant, so this starts from filling the form which is known as the visa application form, VAF. So the VFS does fill this form
ऑन बिहाफ ऑफ अस, ठीक है। एक फॉर्म होता है एक तरीके का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि सिस्टम में मतलब फिल करते हैं VFS के थ्रू। देन दैट इन्फॉर्मेशन इज़ फेच्ड बाय द एम्बेसी। वो इन्फॉर्मेशन फेच होती है, उसके बाद में एम्बेसी में जो वीज़ा असिस्टेंट ऑफिसर होते हैं उनका काम होता है पासपोर्ट के ज़रिए या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स विच एवर हैज़ बीन सबमिटेड टू दी एम्बेसी, उनसे वेरीफाई करना होता है नेम डिटेल। ये वेरीफाई करेंगे आप। उसके बाद में क्या होता है कि सपोज़ एनी कैंडिडेट हैज़ एनी मीन सम इशू, ठीक है, कोई इशू है वीज़ा से रिलेटेड या फिर कोई इंक्वायरी करनी है, सो दे मे ऑल्सो कॉल यू, ठीक। तो आपको कॉल हैंडलिंग भी आनी चाहिए कि हाउ विल यू बी हैंडलिंग दी कस्टमर ओवर दी कॉल्स, ठीक है। कॉल हो गई या फिर डायरेक्टली इफ़ दे आर वॉक इन डायरेक्टली इन दी एम्बेसी, देन यू मस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन mean how to reply the questions which are being asked by them in relating to the visa inquiry। तो ये आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वहाँ पर ब्रीफली, ठीक है। इसके अलावा भी और सारी होती हैं, मतलब जो भी असाइन आपको वर्क कर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू प्रोवाइड यू। अगर आपको वीडियो रेलिवेंट लगी हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप मतलब वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और इसका जो मतलब लिंक है दैट आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नौकरी विद हर्ष, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं और फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।